Hello, class 8th. Today we are going to study part 2 of chapter number 12, India after independence. In this section, we studied about the what is the planning commission and what are the planning for the development for the India after its independence, and what are the different types of sectors where the government of that time paying the attention, like toward the heavy industry, industrialization, and many more things to develop our country, or as a different types of region or states being developed, and what happened during the first five planning commission, and how the nation develops in the 60 years going on after independence, and what is the role of constitutions to make India as a independent and democratic free nation, or what happened about different types of other neighboring countries of India. So different types of aspects have we discussed, have we studied in this chapter. Okay. So, in the planning for development, lifting India and Indians out of poverty and building a modern technical industrial base were among the major objectives of the new nation. It means in 1950 the government set up the planning commission for to help the design and execute suitable policies for economic development. So India lift up and India's Indians out of poverty. There was different types of ideas has given to develop the Indian's economy, like that the planning commission are also given as a mixed economy model, by which both the state and the private sectors would play important and complementary role in increasing production and generating jobs. However, these are the all complementary to each other, because when the production has increased, then the jobs are also generated, and the jobs are generated, then the production has also increased. So let me see how this is happens, and um, the production and generating jobs, these specifies the roles were to be which industry should be initiated by the state, and by which the market, how to achieve a balance between the different regions and states was to defined by the planning commission. बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ आपको कि जो प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट है, ये इसलिए किया गया कि जब भारत देश आज़ाद हो गया था तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि हमारा इंडिया जो है वो गरीबी से जूझ रहा था, और उस समय जो है इंडिया का स्तर उठाया जाए, उसकी गरीबी को दूर करने के लिए हमारे पास टेक्निकल ज्ञान होना बहुत ज़रूरी था, और हमारा इंडस्ट्रियल एरिया यानी कि औद्योगिकरण की नीति अपना करके उद्योग को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि 1950 में जब हमारा प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश किया गया, तो प्लानिंग कमीशन के थ्रू ये सबसे पहले डिसाइड किया गया कि कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे कि भारत की इकोनॉमी बढ़ाई जा सके। और भारत की इकोनॉमी को बढ़ाए जाने के लिए इन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमिक एक मॉडल अपनाया, जिसमें कि वो हर प्रकार के व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास पर्सन हो, सभी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके। और इसलिए इसमें ये भी शामिल किया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर्स हैं और जो डिफरेंट लोकल रीजन्स हैं, सभी का डेवलपमेंट हो सके, और सभी का डेवलपमेंट करने के लिए इन्होंने एक मिक्स इकोनॉमिक सेक्टर को अपनाया। हालांकि इन्होंने ये भी सोचा कि स्टेट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को डेवलप करने के लिए, यानी कि गवर्नमेंट का एक सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर, दोनों को डेवलप करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगा तो जॉब्स मैक्सिमम जनरेट होंगी। तो इन्होंने दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक है। यानी कि अगर मान लीजिए कहीं पर जॉब जनरेट होती है तो वहाँ पर प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होता है, और जहाँ पर प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है वहाँ पर क्या होता है कि जॉब्स भी ज़्यादा जनरेट होती है, लोगों को ज़्यादा ज़्यादा जॉब मिलती है। तो इस प्रकार का मॉडल कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए और उसमें कैसे बैलेंस बना के रखा जाए, जिससे कि डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट स्टेट्स के बीच में एक बैलेंस बने, और बैलेंस से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी हो, साथ साथ जो है लोगों की इकोनॉमिकल ग्रोथ हो, और इंडिया का प्रोडक्शन रेट भी बढ़े, उसका इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो, जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें उसकी वैल्यू बढ़ जाए। इन सभी चीज़ों के लिए प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया है। अब बात ये आती है कि 1956 में सबसे बड़ा ध्यान दिया गया गवर्नमेंट के थ्रू सबसे पहले कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी चाहिए। सेकंड फाइव प्लानिंग जो कमीशन, तो पहला जो प्लानिंग कमीशन था उसमें एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया। सेकंड जो 5 ईयर प्लान आया उसमें सबसे पहले ध्यान दिया गया औद्योगिकरण पर, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पर।
और इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंतर्गत ये सिनेरियो देखा गया कि सबसे पहले उन्होंने देखा कि हैवी इंडस्ट्रीज़ को कैसे डेवलप किया जाए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ को कैसे डेवलप किया जाए, बड़े बड़े लार्ज डैम्स बनाए गए और इन सब सेक्टर्स के थ्रू स्टेट को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। और सारे स्टेट्स ने, जितने भी राज्य थे, सबसे ज़्यादा उन्होंने हैवी इंडस्ट्रीज़ पर ध्यान दिया, मशीनरी पर ध्यान दिया। मशीनरी के थ्रू उन्होंने ये कोशिश की कि अगले कुछ दशकों तक इकोनॉमी पॉलिसी ऐसी अपनाई जाए जिससे कि हैवी इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ हो सके, जिससे कि एक हमारे यहाँ जो है इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के थ्रू स्टेट की ग्रोथ को बढ़ावा देने की बात की गई। इस अप्रोच के कुछ बहुत लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्टर भी थे, बहुत लोग जो है वो वोकल क्रिटिकल्स भी थे, उनको नहीं पसंद थी ये बात। कुछ लोगों ने सोचा कि अगर ये मान लीजिए कि इंडस्ट्रीज़ पे ही ध्यान देंगे तो मशीनरी पे ही ध्यान देंगे तो फिर एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। कुछ लोगों ने सोचा कि अगर ये फिर एग्रीकल्चर पे ध्यान देंगे और मान लीजिए इंडस्ट्रीज़ पे ही ध्यान देंगे तो एजुकेशन पे नहीं ध्यान दे पाएंगे। और बहुत लोगों ने सोचा कि इम्प्लीमेंट तो ये सही कर रहा है बट एनवायरनमेंट पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो महात्मा गांधी ने मीरा बहन को एक चिट्ठी भी लिखी थी 1949। उन्होंने कहा था कि अगर हम साइंस और मशीनरी के ही कंप्लीट फॉलोअर हो गए तो मानवता को ये बहुत एक समय के साथ साथ इसका बहुत बड़ा रिटर्न भी हमको मिलेगा। लेकिन ये जो रिटर्न हमको मिलेगा वो हमारा डिसोलेशन होगा। डिसोलेशन का मतलब है हमको कहीं ना कहीं से ये विरक्त कर देगा, अलग कर देगा। यानी कि अगर विज्ञान का ज़्यादा बढ़ावा विज्ञान को दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, विनाश ही पैदा हो सकता है। और वी हैव गॉट टू स्टडी नेचर, मतलब महात्मा गांधी का ये कहना था कि अगर हम लोग साइंस और विज्ञान और मशीनरी को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर इसका एडवर्स इफेक्ट जो है वो हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ेगा। तो इसलिए नेचर को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम लॉ और अपनी लाइफ दोनों के बीच में एक सामंजस्य बना के रखें। अगर हम नियम कानून से चलते हैं तो हमारे यहाँ हर प्रकार की ग्रोथ हो सकती है। फिजिकली हेल्दी और मोरली हम एक अच्छी स्पीशीज़ को बढ़ा सकते हैं। और ये सब बातें देखते हुए आगे जा कर के 60 सालों में, जब 2007 में हमारा 15 अगस्त मनाया गया तो वो 60 साल हमारे आज़ादी के पूरे होते थे। तो उस समय तक देखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसने क्या ये सब गोल्स जो बनाए थे 1950s में, क्या वो पूरे कर लिए 60 सालों में। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इंडिया जो है वो अभी भी खैर यूनाइटेड है, डेमोक्रेटिक है, प्रजातांत्रिक है और हमें अपने प्रजातंत्र पर बहुत गर्व भी है। बट कई सारे फॉरेनर ऑब्जर्वर्स यहाँ आते हैं और वो उन्होंने महसूस किया है कि हालांकि इंडिया एक सिंगल कंट्री है और उसमें डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस के कस्टम और रिचुअल्स मानने वाले लिंग्विस्टिक ग्रुप्स भी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया जो है एक नेशन के ही रूप में आगे भी बढ़ता चला आ रहा है। और हमेशा जो है इसमें डिफरेंट टाइप के लोग रीजन्स में रहते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में, उसके बावजूद भी जो है सभी लोग मिल करके नेशन को एक ही वे में देखते हैं और एक ही पूरे नेशन को एक ओन फॉर्म में देखते हैं। तो बहुत लोग यहाँ बिलीव करते हैं कि कुछ लोग मिलिट्रियल रूल में बिलीव करते हैं कि नहीं, हमारी डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, हमारा मिलिट्रियल रूल होना चाहिए। कुछ लोगों ने फिर भी उसके बावजूद भी जो है वो 1960 तक देखा जाए, 1900 नहीं सॉरी 2007 तक देखा जाए तो 13 जनरल इलेक्शंस हम लोगों का देश फेस कर चुका है इंडिपेंडेंस से। और लगभग हमारे पूरे देश में 100 से ज़्यादा राज्य हो चुके हैं और लोकल, मतलब हमारे देश में 100 से अधिकतम इलेक्शंस तो अब तक स्टेट गवर्नमेंट के और लोकल गवर्नमेंट के हो ही चुके हैं। और फिर भी यहाँ पर कम्प्लीटली आज़ादी दी गई है प्रेस को, ताकि वो फ्रीली अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सके। और जुडिशरी भी हमारे यहाँ इंडिपेंडेंटली है, यानी कि न्यायिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था और साथ में प्रेस, ये तीनों ही जो संस्थाएं हैं वो एकदम इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं। इनके ऊपर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है और उनको स्वतंत्र रूप से बोलने का भी पूरा अधिकार दिया गया है। और फिर भी अंतिम रूप से जो लोग बोलते हैं डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस और प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट टाइप के फेथ्स और रिचुअल्स पर, वो उसके बावजूद मतलब डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं हमारे इंडिया में, डिफरेंट कस्टम को मानने वाले, डिफरेंट रिचुअल्स को मानने वाले, डिफरेंट लैंग्वेजेस को मानने वाले। उसके बावजूद भी हमारा देश पूरा यूनाइट फॉर्म में है और पूरे इंडिया को एक नेशनल यूनिटी के रूप में देखा जाता है। दूसरी तरफ ये भी है कि हमारे देश में देखिए डीप डिवीज़न परसिस्ट करता है, यानी कि कई सारे भागों में कई अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के बावजूद भी बहुत जगह देखिए जो अछूत लोग हैं उनको अछूत नहीं बोला जाता है, उनको दलित बोला जाता है। फिर भी उसके बावजूद भी हर चीज़ है, हर नियम बना हुआ है, उसके बावजूद भी बहुत सारे दलित आज भी
वायलेंस फेस करते हैं, हिंसा का शिकार हो जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस करना पड़ता है, उनको विभेदीकरण का सामना करना पड़ता है, कहीं ना कहीं उनके साथ जाति होती है और कहीं ना कहीं उनके साथ जो है वो अलगाव भी लोग पैदा करते हैं, यानी कि उनके साथ भेदभाव भी रखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो बहुत सारे हमारा रूरल इंडिया ऐसा पार्ट है जहाँ पर ग्रामीण भारत है, वहाँ पर आज भी देखा जाता है तो जो दलित वर्ग है उनको पानी लेने का अधिकार नहीं है, पंचायत में बैठने का अधिकार नहीं है, टेम्पल्स को यूज़ करने का अधिकार नहीं दिया गया है, पार्क्स में लोकल पब्लिक प्लेसेस पे वो नहीं बैठ सकते एक साथ। तो इन सब चीज़ों के अलावा भी देखा जाए तो हमारा पूरा जो संविधान है वो एक सेक्युलर आइडिया को फॉलो करता है, यानी कि इस हमारे देश में कोई एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं इम्पोर्टेंस दी गई है। हमारे पूरे देश में ये कहा गया है कि संविधान जो हमारा है वो सेकुलर है। सेकुलर का मतलब है द स्टेट और अ नेशन विच डज नॉट फॉलो एनी टाइप ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन और नॉट गिवन द इम्पोर्टेंस टू द पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि हमारा पूरा देश जो है वो पर्टिकुलर एक ही रिलीजन को महत्व न देकर के उसके लिए सभी धर्म एक समान है। और उसके बावजूद भी देखिए कहीं ना कहीं हमारे यहाँ रिच और पुअर यानी कि गरीब और अमीर के बीच में खाई है और उसको पाटने में काफ़ी समय लग जाएगा, क्योंकि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। बहुत सारे लोग देखिए एक हाथ में तो कि बहुत अमीर होते हैं, कई सारे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और अपने बच्चों को बहुत महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते भी हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं। उसके बावजूद भी देखिए दूसरी तरफ वैसे लोग भी हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज नहीं सकते, स्लम एरियाज़ में रहते हैं, रिमोट विलेजेस में नहीं रह पाते हैं। और फिर भी उसके बावजूद जो हमारा संविधान है वो सभी को सभी लोग कानून के दायरे में कानून के सामने बराबर हैं। और कहा गया है बार बार संविधान में कि कानून के दायरे में सब बराबर हैं, लेकिन फिर भी अगर रियल लाइफ में देखा जाए वास्तविक जीवन में तो आज भी कहीं ना कहीं उनके लिए अलगाव है, उनके साथ डिफरेंशिएशन किया जाता है। जैसे वीआईपीज़ को अलग कर दिया जाता है, जनरल पब्लिक को अलग कर दिया जाता है, कहीं कहीं पैसे के बल पर लोगों से विभेदीकरण किया जा सकता है और किया जाता भी है। अक्सर हम लोग को देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि ये वीआईपीज़ हैं तो उनको जो है दूसरों से ज़्यादा स्टैंडर्ड दिया जाता है, ज़्यादा स्टैंडर्ड पर उनको जज किया जाता है। हालांकि हमारे पूरे रिपब्लिक भारत की बात की जाए तो हमारा भारत तब तक पूर्णतया कम्प्लीटली रिपब्लिक और प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक तब तक नहीं बनेगा जब तक कि हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता रहेगा। तो हमें खुद सेट करना है कि हमारा देश कितना इंडिपेंडेंट हो गया है और कितना हमारे देश ने सक्सेस गेन की है भारत को रिपब्लिक बनाने में। अदरवाइज हम कहीं कहीं पर ये देखते हैं कि आज भी हमारा देश वहाँ पे फेल है। तो बच्चों यहाँ पर ये लेसन फिनिश होता है। ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन से के साथ मैं छोड़ जाती हूँ कि आप ये इस बात का खुद ही निर्णय करें कि कहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है, कहाँ पर नहीं है। हमारे आज भी संविधान में कहीं ना कोई कमी है, जिसमें कि लिखा जरूर है कि इक्वल ये ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, बट जो अनटचेबिलिटी है, जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग आज भी सफ़र करते हैं। रिजर्वेशन को ही देख लीजिए, सबसे पहले रिजर्वेशन के तौर पे बहुत बच्चे सफ़र करते हैं, उनको इक्वलिटी नहीं दी गई है, तो इसलिए वो लोग जो है इक्वल शिक्षा गेन नहीं कर पाते और बहुत सारे लोग मेहनत करने के बावजूद भी रह जाते हैं। तो बच्चों फिलहाल तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हुआ। आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन और प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो अगेन एंड अगेन टू अंडरस्टैंड दिस लेसन बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइनल एग्जाम्स एंड आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर माय वीडियोस टू। बाय बाय।